ब्रेक के बाद रुक करेंगे गुजरात बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अहमदाबाद की, जहां देवांग मेहता आईटी अवार्ड्स 2025 और मेवरिक इफेक्ट एआई चैलेंज 2025 का आयोजन किया गया। अगली खबर भी अहमदाबाद से है, जहां अहमदाबाद DFCCIL रेलवे ने अत्याधुनिक ऑपरेशन कमांड सेंटर और नई साड़न कनेक्टिविटी का भव्य प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अहमदाबाद में देवांग मेहता फाउंडेशन ट्रस्ट ने नेस्कॉम और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के सहयोग से देवांग मेहता आईटी अवार्ड्स 2025 और मेवरिक इफेक्ट आईजी चैलेंज 2025 का आयोजन किया। ये कार्यक्रम देवांग मेहता की जयंती पर हर साल होता है। साथ ही देवांग मेहता मेमोरियल लेक्चरर 2025 में मुख्य वक्ता डॉक्टर आनंद देशपांडे थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, गुजरात सरकार और गुजरात सूचना लिमिटेड के सहयोग से कार्यक्रम गुजरात में इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया। हरीश मेहता, प्रणव पांड्या, कैलाश बेन ठाकर और जैमिन शाह भी मौजूद थे। लगभग 1000 टॉपर्स को GTU और अन्य कॉलेजों से सम्मानित किया गया। Yes, sir. Continue. Artificial intelligence is a God-given gift to India, this particular technology. It is going to impact or improve the productivity of every Indian, including the media. Okay? Everyone will have to learn and improve their productivity, lifestyle. But this खूब फर्क पड़ सकता है. So how do we inculcate that AI philosophy in every young person's mind? When they grow up, they start solving our problems. So AI challenge objective is to encourage the students to learn more and deeper about AI and come up with the projects, what we call AI first projects. Not existing project, now AI besado. But first think AI to solve the problem, and then you add other pieces. આજે આપણે દેવાંગ મહેતા આઈટી એવોર્ડ્સ અને હરીશ મહેતાની જે છે એ મેવરિક ઇફેક્ટ એઆઈ એવોર્ડ્સ, એ બે એવોર્ડ્સ માટે મળ્યા છે. પહેલું આ એક એઆઈ એવોર્ડ્સવાળું જો વાત કરું તો એઆઈ બધા જ જાણે છે કે આજે ઓલરેડી અહીંયા આવી ચૂક્યું છે, આવનાર નથી, એ આવી ચૂક્યું છે. જો ટેકનોલોજી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કે એન્જિનિયરિંગ અને જેટલા બી પ્રોફેશનલ કોર્સીસની જો આપણે વાત કરીએ તો એમાં એ ઓલરેડી આવી ચૂકેલું છે. એની અવેરનેસ લાવવા માટે આપણે કરિક્યુલમમાં, કોર્સીસમાં બધા ફેકલ્ટીને બી ટ્રેન કરી દઈએ, પણ જ્યાં સુધી સ્ટુડન્ટ્સ પોતે એને પર એને જે ક્વેશ્ચન્સ પૂછવાના છે, કેટલું એ જરૂરી છે, એની જાગૃતિ નહીં થાય ત્યાં સુધી એટલું જલ્દી ટેક ઓફ ના થાય. એટલા માટે સ્ટુડન્ટ્સને એક આખો ફ્રી પાથવે આપણે આપ્યો કે ભાઈ તમે તમારા પ્રોજેક્ટ્સ, રિયલ લાઈફ પ્રોબ્લેમ્સ તમારે સિલેક્ટ કરી અને એમાં એના એઆઈ ચેલેન્જ તરીકે આપણે ફ્લોટ કરી અને એમાં જે બેસ્ટ જે પ્રોજેક્ટ્સ હતા એને આપણે એવોર્ડ્સ આપીએ છીએ. આ એવોર્ડ્સનો હેતુ એક જ છે કે માસ લેવલ પર આ કોમ્પિટિશનમાં છોકરાઓ વિચારતા થાય. એવોર્ડ્સ તો નેચરલી 1, 2, 3ને આપણે એવોર્ડ્સ આપીશું, પણ એક બહુ જ મોટા લેવલે આનું એક પેનિટેશન થાય, ક્વેશ્ચન્સ આવે, સો દેટ એ લોકોને પોતાના ડોમેનમાં પણ એક આ એઆઈ કેવી રીતે લાવવું. બીજું છે કે આ ઓવરઓલ દેવાંગ મહેતા એવોર્ડ્સ પ્રોજેક્ટ બેઝ લર્નિંગ, જેને આપણે સ્ટાર્ટઅપ્સ કહીએ, ઓન્ટરપ્રેન્યોર્સ કહીએ કે જોબ ગીવર્સ કહીએ, તો એને માટે બાળકોએ અત્યારે જે આપણે ઘણીવાર તમે અત્યારે ક્વેશ્ચન્સ પૂછો છો કે ભાઈ એઆઈ આવશે એટલે જોબ જતી રહેશે, જોબના પ્રોફાઇલ બદલાઈ જશે, તો એ કેવા જોબ્સ એ લોકો ક્રિએટ કરી શકે એને માટેના પ્રોજેક્ટ્સ, પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ્સ લઈ અને એના જે બેસ્ટ સોલ્યુશન્સ હતા. એટલે વન્સ અગેન આ બી એક આખું એકોસિસ્ટમ ક્રિએટ કરે છે કે ભાઈ આપણે જોબ ગીવર્સ કેવી રીતે બનવું, નવા આઈડિયાઝ કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા, અને એને માટેનું ઇન્ડસ્ટ્રી એઝ વેલ એઝ એકેડેમિયાનું આપણે મેન્ટરિંગ અને હેન્ડ હોલ્ડિંગ કરીએ છીએ, જેથી કરીને ગ્રાઉન્ડેડ સોલ્યુશન્સ એ લોકોના આવે અને જે સોસાયટીને કામ લાગે. अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद DFCCIL रेलवे ने अत्याधुनिक ऑपरेशन कमांड सेंटर और नई सांगन कनेक्टिविटी का भव्य प्रदर्शन किया। रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आज अपनी अहमदाबाद इकाई के अंतर्गत कार्यों की पूर्ण कमीशनिंग का उद्घाटन किया। ये स्वतंत्रता के बाद से भारत की सबसे बड़ी रेलवे अवसंरचना परियोजना में से एक महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में 1506 किलोमीटर तक फैले पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रबंधन और निगरानी अब अहमदाबाद के साबरमती स्थित एक अत्याधुनिक ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर से की जाती है। ये सुविधा पूरे पश्चिमी मार्ग के लिए संचालन केंद्र के रूप में कार्य करती है।
इसके अतिरिक्त डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भारत का पहला ऐसा कॉरिडोर है जो अपनी पूरी लंबाई में बिना किसी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग के चालू है। DFCCIL अहमदाबाद के मुख्य महाप्रबंधक मनीष अवस्थी ने इस पर प्रस्तुति दी और अहमदाबाद कमांड सेंटर तथा इसके माध्यम से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। अब तक कुल 2741 रोड किलोमीटर में से 96.4% चालू हो चुके हैं। भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को संभालने वाले आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है यहाँ पर। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमारा नहीं है, ये सिर्फ हमने एक प्रेस का इंस्ट्रक्शन रखा है। कुछ ऐसी चीज़ जो हमने भारतीय रेलवे ने तो इसकी काफ़ी पहले हुई थी, लेकिन एक्चुअल में जो इसमें स्पीड पकड़ी है वो 2017 के बाद से इसमें स्पीड पकड़ी है और अभी तक 96% से अधिक का काम पूरा हो गया है और ये संभावना है कि दिसंबर तक हम पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ईस्टर्न का पार्ट पूरा हो चुका है। वेस्टर्न में जो लास्ट काम बचा है 102 किलोमीटर का, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इस कंट्रोल रूम का मार्च में 2023 में शुरू हुआ था और इसको हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। ये अपने आप में मोस्ट मॉडर्न और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया कंट्रोल रूम है। विश्व के बेहतरीन कंट्रोल रूम से एक है। इसमें हम पूरे वेस्टर्न डेडिकेट कॉरिडोर के सभी ट्रेनों की लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ट्रेन्स की, उसके बाद सिग्नल्स की, जो ओवरहेड ट्रैक्शन है, सबकी मॉनिटरिंग यही हो जाती है। और अभी हमने एक नई चीज़ डेवलप करी है, वो सालन का कनेक्टिविटी है। एक ऐसी कनेक्टिविटी है जिसमें कि हमने रेलवे पे सरफेस क्रॉसिंग किए बिना हमने रेलवे के दोनों एंड को हमारे दोनों एंड जोड़ा है, 2 फ्लाईओवर और 4 सरफेस लाइन से। ये अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है और इंडियन रेलवे का पहला इस टाइप का क्लोवर टाइप की कनेक्टिविटी है ये। इसमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात चल रही है और कम से कम 5 से लेकर 6% जो टारगेट है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का संभावना है। तो DFCC के आने के बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। सेकेंड, इन्वायरमेंटल बहुत फ़ायदे होंगे इसके। और थर्ड, हम जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए हम टर्मिनल बना रहे हैं या PFT बना रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा। सानन के स्टेशन को 2 यार्ड में बांटा, एक हुआ सानन नॉर्थ, एक हुआ सानन साउथ। सानन नॉर्थ को हमने जोड़ा इंडियन रेलवे के गौरागोमा से और IR के सानन से। इसी प्रकार सानन साउथ को हमने जोड़ा इंडियन रेलवे गौरागोमा से और इंडियन रेलवे के सानन से। और फिर जब हमें खुद ऊपर जाना था तो उसके बाद हमने फ्लाईओवर बनाया और सानन नॉर्थ को और साउथ को रेल फ्लाईओवर जोड़ा। 2 रेल फ्लाईओवर हैं, उसके द्वारा को जोड़ा गया। कुछ ट्रेन तो अभी भी चल रही हैं, जैसे कि बताया मैंने आपको ट्रक ऑन ट्रेन जो है, इसमें कि हम पालनपुर से जो मिल्क के ट्रक हैं उसको हमारे फ्लैट वैगन के ऊपर लोड करके और 10 घंटे के अंदर में रेवाड़ी पहुँचाते हैं। डेली एक रैक जाता है, एक रैक आता है। इसी प्रकार से जो हमारा हाई स्पीड कार्गो शुरू किया है हमने LNG रैक्स का, वो अहमदाबाद में सानन नॉर्थ से वहाँ पे अमेज़न की लोडिंग होती है और वो भी लगभग 11 घंटे में दिल्ली पहुँचता है। एक रैक जाता है, एक रैक आता है। यही का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं अपने मेंटेनेंस पे। हमारा जो उद्देश्य है कि मैन पावर कम करें ताकि इसकी कॉस्ट कम आए। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद में अर्चना विद्यालय, उदम विद्यालय और दी मदर इंग्लिश स्कूल की छात्राओं ने खोखरा पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों को राखी बांधी, कुमकुम तिलक लगाया और मुंह मीठा कराया। परिवार से दूर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बहनों से रक्षा सूत्र बांधकर भाई बहन के त्योहार को मनाया। पुलिस उप निरीक्षक भूवा ने विद्यार्थियों को थाने की कार्यप्रणाली और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बाद छात्रों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाया गया, ये दिखाने के लिए कि पुलिस सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध है। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।